हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन पर स्वागत करती हाँ। पीएस सैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੌਪਿਕ। ਫਸਟਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਲਾਈਨ ਮੇਡ ਬਾਈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਸੈੱਟ is also in set then set is called convex set। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਵਾਲੀ एग्जांपल ਦੇਖੋ, ਸਾਨੇ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ x² प्लस y² इक्वल टू 1 का सर्कल है तो इस दे विच तो उपर वाले पॉइंट आएंगे। हुण सपोज सानू सर्कल दिता होया x² प्लस y² लेस दैन इक्वल टू 1 वाला, तो इस दे विच एरिया जो है वो केड़ा आएगा, इस दे अंदर वाला ये सारा जो रेड पोर्शन है ये सारा एरिया आएगा। तो अगर इस दे विच असी इस शेडेड पोर्शन दे विच असी दो पॉइंट्स लैंदे आ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਇਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ V ਟਾਈਪ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਟ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ उस सर्कल्स के एरिए के विचकार नहीं आ रही है, शेडेड नहीं है, तो जो है भी की है कन्वैक्स सैट नहीं बनेगा। तो इसी कन्वैक्स सैट की डेफिनेशन नैक्सट करते हैं जी। रिजल्ट है कहते इफ LPP admits two optimal solutions then it has an infinite number of optimal solution। कहते अगर एक LPP दे विच साडे कोल दो optimal solution आ जाते हैं then की होएगा, it has infinite number of optimal solution। मीनस सपोज करो साडे कोल LPP है उहदे विच जिहड़े कॉर्नर पॉइंट्स है सपोज 2 3 ते जिहड़ी वैल्यू आ रही है तो जो है सपोज करो 3 0 ते जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही ने, तो मैक्सीमम वैल्यू ने सानू सपोज करो मैक्सीमाइज करने लई कहा गया, तो दोनों है जो मैक्सीमम वैल्यू दो आ गई, दो पॉइंट्स उत्ते सेम वैल्यूज आ गई, तो जो है असी की कहांगे कि अगर जोड़े दोनों ऑप्टीमल सल्यूशन है इन्हां नूं मिला के जो लाइन बनेगी उसके उपर जिन्ने भी पॉइंट आएंगे जो है उसते जो है पॉइंट जो है ऑप्टीमल सल्यूशन आएगा। तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ऑप्टिमल सोल्यूशन भी जो दोनों पॉइंटा मिला के जो लाइन सैगमेंट बनेगी उस उपर जिन्ने भी पॉइंट आएंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स वो क्या होंगे साडे ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। तो इस रिजल्ट ही है, रिजल्ट बहुत वक्त पेपर के भी पुट आउट किया जाता है, तो इसमें एज इट ही याद रख लियो। नैक्सट
MCQs है कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग, तो करते हैं जी। LPP हैज़ कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑप्शंस हैं। LPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 वेरिएबल, 1 और 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 2 और मोर वेरिएबल्स। तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट है जी, क्योंकि 2 या उस तो 2 या उस तो ज़्यादा वेरिएबल्स ਦੇ जो है कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं एक LPP ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कहते इन्हों के विचों केड़ी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन है एवरी LPP एड्स एन एडमिट्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। कहते कि हरेक LPP का एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। ये जो है करैक्ट नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है अगर अनबाउंडेड आ जाए तो आपको मैक्सीमाइज करने लिए क्या हो तो उत्थे जो है अपने को वैल्यू जो है ऑप्टिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। नैक्सट पूछे जी, LPP एडमिट्स यूनीक सोल्यूशन। तो ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि कई बार 2 पॉइंट्स से या कह लो 2 पॉइंट्स में जो मिलावांगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साढ़े को ऑप्टिमल सोल्यूशन आएंगे, तो यूनीक नहीं कह सकते कि LPP हर एक LPP का यूनीक सोल्यूशन नहीं होंगे। नैक्सट है, इफ LPP एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन। कहते किसी अगर LPP के 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाते हैं तो इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये असी हुणे कीता सी कि जो 2 पॉइंट्स के उत्ते जो है मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू आ जाती है, तो उन्होंने जो मिलाने तो वो सारे जोड़े पॉइंट्स है उन्होंने जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है, यानी इनफाइनाइट जो है नंबर ऑफ साढ़े को ऑप्टिमल सोल्यूशंस आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इन्होंने करेक्ट है। सिमिलरली जो लास्ट है वो भी की है रोंग ऑप्शन हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हाँ जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। सानू कॉन्स्टेंट गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, तो असी मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है की होएगी। तो पहले असी इसका ग्राफ ड्रॉ आउट कर दिया। सानू इनइक्वैलिटीज़ किहड़े दित्तियां ने, x प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y लैस दैन इक्वल टू 10 सानू इनइक्वैलिटीज़ गिवन है। तो जो है पहले असी x प्लस वाई इक्वल टू 7 बना रहे हैं। अगर y 0 रखोगे तो 7 0 पॉइंट आ जाएगा, अगर x 0 रखोगे तो 0 7 पॉइंट आ जाएगा। तो जिन्होंने मिला के लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी। सिमिलरली हूँ इतने जो x प्लस 2y इक्वल टू 10 लोगे लाइन, तो y 0 पुट करोगे तो 10 0 पॉइंट, अगर x 0 पुट करोगे तो 0 5 पॉइंट आ जाएगा। तो लाइन जो साड़ी है ये बन जाएगी। हूँ दोनों लैस दैन वाले हैं, तो अगर इन्हों का कॉमन पार्ट जो है ओरिजिन को जो है सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो टुवार्ड्स ओरिजिन होंगे ये। तो जो है कॉमन एरिया शेडेड पार्ट जो है फिजिबल रीजन जो है इसका ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। हूँ जो कॉर्नर पॉइंट साढ़े को किहड़े आ गए, एक तो 0 0, एक 7 0, एक जो इन्हों का इंटरसैक्शन पॉइंट होएगा वो निकाल लियो 4 3 आएगा। तो जो एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएगा इसका 0 5 आ जाएगा। हूँ साढ़े को ऑब्जेक्टिव फंक्शन सानू दिता होया 5x प्लस 2y, तो है इन्होंने कॉर्नर पॉइंट्स से जो है इसकी वैल्यू असी निकाल लाँगे। जो वैल्यू जो निकाली है तो 35 जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 35 यानी कि ऑप्शन सी इज़ द क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एरिया ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। हुण सानू कॉन्स्टेंट्स दिते हुए हैं, तो असी सानू पूछा गया जो एरिया होएगा फिजिबल रीजन का वो की होएगा, बाउंडेड होएगा, अनबाउंडेड होएगा, कन्वैक्स होएगा या कनकेव होएगा। पहला असी बाय डायग्राम देखते हैं। सानू कॉन्स्टेंट्स की गिवन ने दिस वंस, तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 की जो लाइन बनावांगे तो साढ़े को आ जाएगी। हूँ 0 प्लस 0 पुट करोगे, 0 0 वैल्यू इतने x y की पुट करोगे तो सैटिस्फाई नहीं कर रही, यानी कि अवे फ्रॉम रीजन है, तो जो है इसका ये चीज़ ऊपर बन जाएगी। तो ये जो है साढ़े को अनबाउंडेड आ गया, तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। वैसे भी असी अगर तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ड्रा कर सकते हैं, बट जदों ऑल कॉन्स्टेंट्स जो साढ़े को ग्रेटर दैन इक्वल टू द साइन दिता होवे, मीनस ये साइन होवे सब सारे कॉन्स्टेंट्स के विच, तो ये अल्टीमेटली ही है कि साढ़े को जो ग्राफ है वो की बनेगा अनबाउंडेड ही बनेगा। असी विदाउट ग्राफ ड्रॉ किते भी सीधा कह सकते हैं मेरे क्वेश्चन कि जो साडा एरिया आएगा फिजिबल रीजन का वो की आएगा अनबाउंडेड आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x plus 2y subject to the constant x plus y less than equal to 2, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is obtained as। कहते वो पॉइंट दसो जिथे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मतलब इसकी आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। कॉन्स्टेंट्स की गिवन है, वाले साढ़े को कॉन्स्टेंट्स गिवन है। तो हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो पहले की इसकी जो है ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ए वाली लाइन आ जाएगी। तो जो लेस देन इक्वल टू द साइन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन जो है ओरिजिन सेटिस्फाई कर रही है, तो जब टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा तो एक ए कॉर्नर पॉइंट आ गया, एक ए वाला तो एक बी जो है कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ਹੁਣ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सानू की दिता हुआ 3x प्लस 2y, तो उस अकॉर्डिंग जो मैक्सीमम वैल्यू है कि आ गई साड़ी 6 आ गई, किहड़े पॉइंट ते ए 20 पॉइंट ते आ गई है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो की आ गया साढ़े कोले सी आ गया। अगर असी बाय ऑप्शन चैक करना हो इस क्वेश्चन तो डायरैक्टली बाय ऑप्शन भी चैक कर सकते हैं। तो जोड़ा साढ़े कोले मैक्सीमम जो है जिससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सीमम होएगा वो वर्टेक्स जो है जो साड़ियाँ गिवन कॉन्स्टेंट्स होंगे उन्होंने विचों एटलीस्ट वन नू तां जो है सैटिस्फाई करेगा ही करेगा। कॉन्स्टेंट्स दे विचों एक कॉन्स्टेंट नू तां सैटिस्फाई करेगा, वध नू भी कर सकदा। सपोज साडे कोल दो कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ये तो साडे कोल गिवन ही हुंदियां ने। सो साडे कोल इस तरह दे दो कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ये तो या तो उन्हां चों एक नू करेगा या फिर दोनों नू करेगा ही करेगा। तो नोट है जी, द पॉइंट एट विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड मस्ट सैटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। वही है जी पॉइंट कि एक ना एक कॉन्स्टेंट नू तां जो है वो कॉर्नर पॉइंट जो है सैटिस्फाई वो करेगा ही करेगा जिससे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है साडे कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, if the feasible region of a LPP is empty then the solution is। कहते अगर LPP का feasible region है वो empty आ जाए, उसके विच कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा feasible region दे विच, तो solution साडा केड़ा बन जाएगा infeasible, unbounded, अल्टरनेटिव या फिर नन ऑफ दीज। तो साडा वो जोड़ा बन जाएगा इनफीजिबल सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि असी पहले भी कहा सी कि इनफीजिबल सोल्यूशन केड़ा हुंदा जो फिजिबल सोल्यूशन तो इलावा बाकी दा जो एरिया होंदा है उस केड़ा हुंदा सारा इनफीजिबल हुंदा है। तो जो फिजिबल साडे कोल एम्प्टी आ गया तो जोड़ा सोल्यूशन होएगा की होएगा इनफीजिबल ही होएगा साडे कोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन इक्वेशंस 3x माइनस वाई greater than equal to 3 and 4x minus y greater than equal to 4 ऑप्शंस हैं। कहते ये इन इक्वेशन सानू दित्तियां हुईयां ने, तो पहला असीं इन्हां दा की करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लैंदे आ। तो की बन जाएगा, एक सानू दित्ती हुई है 3x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, दूसरी केड़ी है 4x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हैगी है। तो जो है द ग्राफ ड्रॉ करांगे तो जो इत्थे y नू 0 पुट करांगे तो माइनस जो 1 है पॉइंट आ जाएगा, तो जो तो 1 0 पॉइंट बन जाएगा। तो जो x नू 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 3 पॉइंट आ जाएगा। तो एक तो लाइन साडे कोल ए वाली बन गई। दूसरा की है जो दूसरी इस दे विच पुट करोगे एक पॉइंट तो 1 0 ही आ जाएगा कॉमन पॉइंट, यानी कि इन्हां दा तो एक जो है 0 माइनस 4 पॉइंट आ जाएगा। तो दूसरी लाइन ये वाली बन जाएगी। हुण साडे कोल की गिवन है, दोनों ही जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू द साइन है। 0 0 पुट करोगे तो 0 पहली तो किया जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो अवे बनेगा। दूसरा भी है 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों ही ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो कॉमन पोर्शन है की आ जाएगा दोनों का इधर वाला आ जाएगा, ये पोर्शन कॉमन आ जाएगा। हूँ सानू ऑप्शंस की गिवन है कि कह रहे हैं कि कहते है जी इक्वेशंस है हैव सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई, हैव नो सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई। पहला सेकंड ऑप्शन चेक कर दिया कि हैव नो सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई, कि एक्स से वाई की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू ਲਈ जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। ਹੁਣ एक्स से वाई पॉजिटिव ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, फस्ट ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ए वाले पॉइंट है ए एरिया आया साढ़े को शेडेड पोर्शन, तो जो ए इत्थे इस
इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जो पॉइंट है ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ जो है इस इनइक्वालिटीज़ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ नहीं आ रहा ਤਾਂ आ ही ਰਿਹਾ क्योंकि ये जो पॉइंट है ਇਹਨਾਂ ਲਈ जो है ये शेडेड पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ही इंक्लूड है ਤਾਂ पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स वाई ਦੀਆਂ आ रही ने जिन्हों ਲਈ जो है ये पोर्शन शेडेड बन रहे हैं तो सैकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया कि कोई सोल्यूशन नहीं है पॉजिटिव एक्स एंड वाई लिए तो ये तो गलत हो गया। नैक्सट इन्होंने क्या हैव सोल्यूशन फॉर ऑल एक्स कहते सारिया एक्स ਲਈ जो है भी मतलब ये शेडेड पोर्शन बन रहे हैं तो जोड़े इधर वाले एक्स होणगियां वैल्यूज़ उन्होंने ਲਈ ਤਾਂ ये चीज़ सैटिस्फाई नहीं है वो तो इस शेडेड पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड नहीं है तो जो थर्ड ऑप्शन भी जो है इसका की आ गया रोंग आ गया। सिमिलरली वाई दी भी ऑल वैल्यूज़ के लिए जो है इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये भी जो ऑप्शन होएगा कि हो जाएगा रोंग हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही कि आ जाएगा राइट आ जाएगा कि हैव सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन्होंने लिए एक्स से वाई दी पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है तो ये ऑप्शन जो है कि आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP डिफाइंड ओवर कन्वेक्स सेट अटेन्स इट्स मैक्स ऑप्टिमम वैल्यू एट कहते ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी LPP दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी ऑप्टिमम वैल्यू साढ़े कोल कित्थे आंदी है एट लीस्ट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑल कॉर्नर पॉइंट्स एट लीस्ट टू ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स या फिर नन ऑफ दिस हुण सारे कॉर्नर पॉइंट्स से तो साढ़े कोल ऑप्टिमम वैल्यू आती नहीं है ठीक है जी तो दो ते भी नहीं आती अगर दो ते आएगी तो दोनों जी मिलान वाली लाइन होंगी है तो उससे जिन्ने भी पॉइंट होंगे तो या तो इनफाइनाइट आएगी या फिर साढ़े को एक पॉइंट ते ही आती है तो अस ये नहीं कहेंगे कि या तो सब ते भी नहीं आती सारे पॉइंट्स से भी नहीं आती दो ते भी नहीं आती क्योंकि जो दो ते आएगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन साढ़े कोल बन जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा एटलीस्ट वन तो भी नहीं कह सकते एटलीस्ट वन जो है कि एक कॉर्नर पॉइंट पर आती है या फिर क्या आती है इनफाइनाइट पॉइंट्स से आती है तो ये ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज़ कहते जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है LPP का वो साढ़े कोल किस टाइप का होंगे Z इज इक्वल टू AX प्लस BY टाइप का होंगे तो यह की होंगे साढ़े कोल एक लीनियर पॉलिनोमियल होंगी है तो C ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रीजन रिप्रजेंटेड बाय x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कहते जो x ते y जिस पॉजिटिव हो दोनों ही वो रीजन केड़ा होंगे कि इस क्वाड्रेंट राही रिप्रजेंट करते हैं फर्स्ट सैकेंड थर्ड या फिर फोर्थ तो ओबियसली है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच ही है जो एक्स से वाई दोनों की होंगे हैं पॉजिटिव होंगे। तो ये सी कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग लीनियर प्रोग्रामिंग अगर तुहानूं ये क्वेश्चनस वधिया लगे होण तो वीडियो नूं वध तों वध लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो जी। इस तरह दी वीडियोज़ असीं अगे तो तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।